अनुदान की अनुपूरक मांगे भी प्रस्तुत किए जाने की दिन भी चर्चा में ली गई है। मिस्टर मनीष तिवारी। कई बार। Thank you very much, Mr. Chairperson. Before I commence the discussion on the budget and the demand for grants for Jammu and Kashmir, may I once again reiterate my objection that Rule 205 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business of the Lok Sabha is a fundamental rule. It constitutes what could be called one of the pillars of the basic structure on which this temple of democracy runs. And so, therefore, it is my contention, Mr. Chairperson, and I asked for a ruling on it in the morning. It is not, it cannot be amended using, or it cannot be waived using the amending powers or the suspension powers of Rule 388. I would, in all humility, request the Chairperson, the Chair, that a ruling on this particular point, where the word used in Rule 205 is not may, it is shall, and there are no extraordinary exceptional circumstances why the debate has to be held on the same day as the budget documents have been tabled, and this, in my respectful submission, sets an extremely unhealthy precedent and may in future be extrapolated to situations which are far, far more serious than what we are confronting today. So, therefore, I would request that my objection be noted, Mr. Chairperson, sir. Number two, Yadav Sahab, I have requested for a ruling because in my estimation 205. I'm not Yadav Sahab, I am not yielding. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, पर 388 में पावर स्पीकर को है, उसको अंडरमाइन नहीं करना। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इस नियमावली का बेसिक स्ट्रक्चर है और मैं इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय से रूलिंग चाहता हूं कि क्या वो रूल जिसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है हाउस शैल नॉट डिस्कस can those rules be suspended? Why did you do it in 2014? That also you please explain. Well, you should have pointed it out in 2014. You were sitting here, you should have pointed it out. That is not an excuse. Mr. Parliamentary Affairs Minister, you were sitting here on these benches. If we were doing wrong, why didn't you point it out at that point in time? Honorable Minister, is that a defense? Sir, I'm sorry. That is not a defense. Sir, I would like to just say, you could have pointed out as one thing. No, he could have. Sir, let me say this. He could have pointed out as a very, very powerful line to say, but all of us will have to accept the chair's pronouncements. We followed that in 2014, forgetting that if you raise the question again, that the chair's ruling exists on this even as far back as 2014. The issue shouldn't have been raised at all. There is a precedent. Mr. Chairperson, sir, I am asking for a ruling. In fact, I didn't yield to the Honourable Finance Minister, but notwithstanding that, if she wanted to make her point, well, she has that discretion. But I would again like to reiterate before I start this discussion, Mr. Chairperson, that on this particular point, with regard to the budget, which is the sacrosanct duty of this House, can a violation of procedure in this manner be done? My second fundamental objection, Mr. Chair, and I would request you, please do not subtract this from my time. Jammu and Kashmir is not the only union territory in this country. Jammu Kashmir कोई अकेला केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं. चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है, दमन और दीव भी है. तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी
सत्ता पक्ष से ये जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर इस सदन में अलग से चर्चा कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। अगर आप ये परंपरा डालना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो बजट हैं उनकी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए, तो फिर तो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बजट की होनी चाहिए, फिर चंडीगढ़ के बजट की भी होनी चाहिए, फिर दमन दीव के बजट की भी होनी चाहिए, फिर लक्षद्वीप के बजट की भी होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर अलग से चर्चा क्यों हो रही है, ये अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का विषय है और इसके ऊपर भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि चेयर की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई रूलिंग दी जानी चाहिए कि क्या ये परंपरा अगर हम डाल रहे हैं तो अगली बारी सब हर केंद्र शासित प्रदेश के बजट की चर्चा इस हाउस में होगी। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका स्वागत करता हूं, बट देयर कैन नॉट बी डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। रूल्स नीड टू बी अप्लाइड इन अ यूनिफॉर्म मैनर। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, द रिकॉर्ड शुड बी क्लियर। Suspension of Rule 205 has been agreed by the House and not only by the Speaker. That was first approved here in the House. No. We asked for a division which was not allowed. Therefore, it is for the House to take a view whether any rule is to be suspended or not. When any such motion for suspension is brought before the House by Honorable Minister or any other member, subject to permission of Honorable Speaker. And the other point which we want a ruling, I think the matter is clear now. The House functions not only by rules and directions, House also functions on precedents. And many a time, we have a rules committee. Rules committee can consider if there is some difference during implementation of certain rules, then the rules committee will take cognizance of it. So in that respect, I believe what is being raised by Honorable Member Mr. Tiwari can also be deliberated in the rules committee. But final say is of Honorable Speaker and also of the House. Budget of Union Territories, I would just like to mention here, without legislature, is included in demand for grants of the Union Ministry of Home Affairs. I think that settles. Let us start this. नहीं, सभापति महोदय, Okay. नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। मनीष जी सीनियर मेंबर हैं और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मतलब जब वो अपनी सरकार में भी थे तो कई एक बार उन्होंने जो देश के लिए जेन्युइन चीज थी वो उठाया, इसलिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं। संजोग से हम दोनों साथ ही इस पार्लियामेंट में आए। मैं ये देख रहा हूं पहली बार, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मनीष तिवारी जी कह रहे हैं सभी रूल का जो अंतिम जिस्ट है सर 389, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि वो स्पीकर को इस सभा को संचालित करने के लिए सारा अधिकार देता है कि स्पीकर सारे रूल को, सारे कानून को स्थगित कर सकते हैं, और 389 के बाद यदि स्पीकर की रूलिंग आ गई है फिर इसके ऊपर चर्चा कहीं से मैं उचित नहीं समझता हूं। ठीक, ओके, थैंक यू मिस्टर तिवारी। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि मुझे 12:45 पर ये जो बजट के कागज हैं ये प्राप्त हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आइंस्टाइन भी चाहते तो वो 1.25 घंटे में इस सारे जो बजट के दस्तावेज हैं, शायद 7 किताबें हैं, उनको अपने संज्ञान में ले पाते। और मैं अपने आप को कोई आइंस्टाइन नहीं मानता हूं, और इसलिए I would like to plead ignorance that I have not been able to read this budget, and I would like to place it on record that it is humanly possible to read this budget, और इसलिए
और इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा है, बजट उसका एक माध्यम है, तो जो एक सार्वजनिक जानकारी है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, उसके बारे में मैं अपना वक्तव्य इस सदन के समक्ष रखूंगा। मैंने बहुत जल्दी से कोशिश की कि जो माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको पढ़ने की कोशिश करूं। उनके बजट भाषण के 35वें सफ़े पे जो पैरा 13.1 है, उसमें वो कहती हैं कि द बजट 22-23 फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल फोकस ऑन गुड गवर्नेंस, deepening grassroots democracy, accelerated development and inclusive growth, facilitating investment and industrial growth, infrastructural development for improving quality of life, and employment, youth initiatives, and women empowerment, and broadening social inclusion. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली नोबल सेंटिमेंट्स। पर जो जमीन की हकीकत है, जो जमीनी परिस्थिति है, वो जमीनी परिस्थिति कुछ अलग है। इस सदन में 6 अगस्त 2019 को जब ये फैसला हुआ कि धारा 370 को हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी संरचना वर्ष 1822 से लेकर वर्ष 1846 के बीच में की गई, उसका विभाजन कर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, तो सत्ता पक्ष के तरफ से 2 दलीलें रखी गई। पहली दलील ये रखी गई कि इस प्रक्रिया से जम्मू और कश्मीर का जो भारत के साथ विलय है वो और सुदृढ़ होगा, द स्टेट विल बी इमोशनली इंटीग्रेटेड। और दूसरा जो उद्देश्य बताया गया, इससे जम्मू और कश्मीर में जो विकास का कार्य है वो और तीव्र गति से होगा। आज 33 महीने हो गए और इन 33 महीनों में क्या ये जो दोनों लक्ष्य हैं, इसको पूरा करने में सरकार सफल हो पाई है? और मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उसका जो जवाब है वो ना में है। और मैं उसको प्रमाणित करने के लिए इस सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आज भी जम्मू कश्मीर में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है वो चिंताजनक है, और जितनी परिस्थिति 2019 में संवेदनशील थी, 2022 में भी स्थिति उससे ज्यादा ही असंवेदनशील है। जम्मू कश्मीर एक सरहद का राज्य है और सरहद के राज्य में जो सरहद पे होता है उसका असर सीधा सीधा राज्य के अर्थव्यवस्था के ऊपर, राज्य की जो सोसाइटी है उसके ऊपर पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 से अगर आप उठा के देखिए तो वर्ष 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए थे। 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यह बढ़कर 3279 हो गए। वर्ष 2020 में ये 5100 हो गए और वर्ष 2021 में इसके बावजूद कि पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आम सहमति बनी, वर्ष 2021 में भी जो ये सीज फायर वायलेशन थे ये 664 थे। और मैं इसलिए ये आंकड़े सदन के समक्ष रखना जरूरी समझता हूं क्योंकि वर्ष 2004, 2005, 2006 और ऑलमोस्ट 2000 इन तीनों सालों में तो शून्य थे, पर वर्ष 2013 तक ये सीज फायर वायलेशन 100 से कम रहे थे। और ये जो आंकड़े हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल 2020 से जो पूर्वी लद्दाख में परिस्थिति है वो अत्यंत ही संवेदनशील है। चीन की फौज उन इलाकों में घुसी हुई है
जिनको भारत अपनी सरजमीन मानता है। और 2020 से लेकर आज तक जो परिस्थिति है वो और जटिल हो गई है, क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, इमरान खान का मॉस्को जाना, इस झगड़े के बीच में 4 फरवरी को जो अग्रीमेंट साइन हुआ है चीन और रूस के बीच, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंटरिंग अ न्यू एरा, इससे परिस्थितियां पिछले और 3 साल में जटिल हुई हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के सरहद के सूबों पे पड़ता है। और मैं भी एक सरहद के सूबे की यहां पे नुमाइंदगी करता हूं। तो इसलिए इस सरकार को बहुत ही गंभीरता से बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था पे, वहाँ के वायलेंस पे, वहाँ की घटनाओं पे, उस पे जो उनका बयान आ रहा है वह बयान सही नहीं है, गलत है। आप हम नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा कि अभी इसी सदन को अवगत कराया गया है फर्स्ट सिटिंग में कि क्या वहाँ की स्थिति है, इसलिए एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था और विपक्ष का क्वेश्चन था। तो नहीं, आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा। अगर आप मेरे वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखते, आपको मौका मिलेगा, अब रिबट कर दीजिएगा। लेकिन बीच में जो गलत आंकड़े दे रहे हैं, जिसको सदन में चेयरपर्सन सर, सही आंकड़ों से Mr. Chairperson, sir, I find this incredible that minister after minister is standing up and interrupting. Does a member not have the right to be able to articulate what he says in this house? Have they not read Article 105(2) of the Constitution? Are they not aware of the privileges which members of Parliament have? I mean, I find this to be highly objectionable. That you are not even allowing me to say, as a member of this house, what I have a constitutional right to say. Hey, what? आप कहिए, please. Supriya ji is saying that I should be flattered that all ministers are replying to me. So in that spirit, I will continue my... This is a privilege on the part of a member that the ministers are intervening. It's a credit on you. So मैं अध्यक्ष जी बहुत ही जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे जो भारत की सरहद के ऊपर परिस्थिति है वो सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई कि उसके ऊपर जो चिंताएं हैं भारत की वो बढ़ी है। ये एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील सवाल है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको जरूर अपने संज्ञान में ले। दूसरा सवाल मैं अध्यक्ष जी उठाना चाहता हूं, जो आज मैं सुबह एक सरकारी आंकड़े पढ़ रहा था और उस वक्तव्य में ये लिखा था कि 70% जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए उनको मार गिराया गया। 70% of those locals who had joined the militancy were neutralized. पर जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय ये है कि क्या वर्ष 2019 से जो लोकल नौजवानों का इस आतंकवादी गतिविधियों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि क्या वो बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जरूर इसको बहुत ही गंभीरता से अपने संज्ञान में ले। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि इस सदन में 8 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और 18 अक्टूबर 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड का जो विषय है उसके ऊपर जल्द निर्णय होगा, जल्द फैसला होगा। आज हम मार्च 2022 में हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में 2019 में दिया या उसके बाद कई बार माननीय गृह मंत्री ने दिया, सरकार उसके ऊपर कब अमल करने जा रही है? कब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने जा रही है?
इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, आजकल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। वहां पे नए विधानसभा के क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रक्रिया से वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है। और एक ये आम बात है कि राजनीतिक पार्टियों को उस सारी प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आरक्षण की वजह से कहीं ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जो लोग आरक्षण से बाहर हैं वो कंप्लीटली अनरिप्रेजेंटेड रह जाए। और इसके अलावा एक चीज मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश की संरचना में महाराजा रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था। 1822 में उन्होंने राज तिलक किया था राजा गुलाब सिंह जी का। तो इसलिए वहां पे जो सिख माइनॉरिटी है उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रावधान देने के लिए, जैसे यहां पे एंग्लो इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन देते थे, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल रही नहीं, तो क्या जो वहां पे सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी को आप उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व देंगे, कुछ सीट्स को वहां पे रिजर्व करेंगे। इन मुद्दों के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। अब मैं वहां की इंडस्ट्री के ऊपर आता हूं। एक बात जो कही गई थी कि जब धारा 370 हट जाएगी तो बाहर से बहुत सारे निवेशक आएंगे और जम्मू और कश्मीर में उद्योग लगाएंगे, जिससे वहां पे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुए हैं उसके हिसाब से अभी तक 99.9% जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की याचिका दी है वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। The moot point being, there is negligible interest by investors outside Jammu and Kashmir for investing in that state. अब आप स्टेट की इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए, और मैंने ये आंकड़े सदन के समक्ष एक बारी पहले भी रखे थे कि कश्मीर में तो इंडस्ट्री है नहीं। जम्मू में जो 3 जिलों में इंडस्ट्री थी, जम्मू, सांबा और कठुआ, उसमें से जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे 12,997, उसमें से 5,890 काम कर रहे हैं और 7,107 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो चुके हैं। और अध्यक्ष जी, ये बहुत चिंता की बात है कि अगस्त 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहले 4 महीने में ही जो ह्यूमन राइट्स इन J&K करके एक संगठन है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को आप संज्ञान में ले, पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट्स, जो बेसिक इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये सारी बातें सदन के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बहुत ज्यादा ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। चाहे आप इंटरनेट शटडाउन्स की बात कर लीजिए, 5 अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक 2,213 दिन इंटरनेट बंद रहा। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 100 बारी इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जम्मू कश्मीर का पूरे अगर भारत को संज्ञान में ले तो उस मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा स्कूल बहुत सारे दिन वहां पे बंद रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है अध्यक्ष जी कि जिस विचारात्मक उद्देश्य को लेकर यह सरकार अगस्त 2019 में चली थी कि आर्टिकल 370 को, धारा 370 को धराशायी करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर
जम्मू और कश्मीर का विकास, तरक्की, उनके नौजवानों को रोजगार, उनके जो इंडस्ट्री है उसकी खुशहाली होगी। क्या उन उद्देश्यों में सरकार सफल हो पाई है? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो मैंने थोड़े बहुत आंकड़े देखे हैं, जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री ने, उसमें जो प्रशासनिक बजट है, प्रशासनिक बजट में से 73% पैसा होम डिपार्टमेंट पे खर्चा रहा है। तो अगर 73% पैसा आप सुरक्षा पे खर्च रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि जो परिस्थितियां हैं वो सुधरी नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।